यस बेटा बताएं। यस सर, आवाज आ रही सर जो हो रही है आवाज भी आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन सही आ रही है? हाँ है आ सर। रही है। सर आ रही है। Okay, okay, all right. The topic of the today's lecture is ureter. This is a connector part between the kidney and the urinary bladder. What are the main features of this? We will see today. What are the main features that a ureter, you know, okay, the ureter is a muscular tube which is originate from the kidney through its pelvis, forming here is a pelvic ureteric junction. ये वो जंक्शन है जो हम तीन ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये देखेंगे इनको कैसे कंस्ट्रक्शन, जहाँ जहाँ पे ये जंक्शंस होते हैं ना तीन, यही पॉइंट्स होती है जिनको हम इस लेवल पे देखेंगे। दे फार्मिंग सम कंस्ट्रक्शंस वेयर द स्टोन कैन बी लॉज्ड। ये दो चीज़ें हैं। अब वो कहाँ पर है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप पहले ये समझो कि मस्कुलर ट्यूब क्या है। ये ट्यूब है, इसकी जो वाल होती है मोस्टली दैट हैव अरेंजमेंट म्यूकोजा, सब म्यूकोजा जिस तरह आपने जीआईटी में भी पढ़ा था, इसी तरह से इसकी वाल भी इस तरह से होती है। और सेकंड बात है, ये मैंने है इसकी बात कि इसका मसल जो है वो एक ऐसे पार्ट पे जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर जहाँ पे ये इंटर होता है यूरिनरी ब्लैडर पे, वेयर इट कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ द मसल। माना टाइप्स का मतलब ये नहीं कि थ्री लेयर्स ऑफ द मसल, okay, that at the level where it enters into the urinary bladder. So that enters into the urinary bladder behind to it at a superolateral opening हम कहते हैं, जो is present on the posterior surface at the superolateral ends of the urinary bladder. Now the two ureters are passing from the kidney towards the urinary bladder to propel the urine, or we can say that they have due to its peristaltic movements that can move the urine. It is round about 10-inch long, 25 centimeters is length. Have मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी तीन कंस्ट्रक्शंस होती हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली वेयर दी stone can be lodged. The ureter is a funnel shaped, its upper end is expanded and that is connected with the uh, pelvis of the kidney. Pelvis is the वो पार्ट होता है जो कि माइनर एंड मेजर कैलेक्सिस बनती है किडनी में, दैट मीन्स के दैट इंटरेस्ट इनटू द पेल्विस, so that is the first main part of the ureter. Then it's a crossing down or runs down and at the level of the pelvic brim. यहाँ पे ये जो है वो that also crossed by the common iliac artery in front of the sacroiliac joint. Now at the pelvic brim, when it passes, there will be also forming a constriction because ये जो anterior से posterior move करेगा from in front to back side. तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ है, ये इन फ्रंट ऑफ द कॉमन iliac artery, it runs down and that is one pelvic part and then it runs down and here is forming the pelvic जो है brim पे जो है that moves down and up to the level of the posterior part of the upper part of the urinary bladder. यहाँ तक ये जो पार्ट जाएगा, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में जब इंटर होगा तो यहाँ पे आल्सो फॉर्मिंग दैट कंस्ट्रक्शन behind when it enters into the urinary bladder. So there are main three constrictions within the urinary bladder.
If you see the relations from anterior to the posterior, if you see anteriorly, what structure they forming structures which are present anteriorly, what are the main structures? The duodenum, terminal part of the ileum, the right colic and ileocholic vessels, the right testicular or ovarian vessel, and the root of the mesentery and small intestine. When you see to posterior to it, पहले तो हम वो पढ़ेंगे भाई कॉमन इलेक आर्टरी में वेरी आसान कि ये जो है बिल्कुल इस तरह याद करने में आपको आसानी होगी कि वहाँ कॉमन इलेक वैसे ये एमसीक्यू में आ भी सकता है ऐसे सवाल आपको दे सकते हैं। और दूसरे उसके बाद राइट क्रॉस मसल है, क्वाड्रेटस लंबोरम है और कुछ नर्व्स हैं जो कि इसके बिहाइंड होती है। मेनली सॉस मेजर इज मोस्टली लाइन इन पोस्टीरियर, क्वाड्रेटस लंबोरम बहुत मीटर होती है ना, लेकिन थोड़ा बहुत उसका रिलेटेड पार्ट होता है, तो वी कैन से दिस इज आल्सो प्रेजेंट ऑन बिहाइंड इट। These structures they are in relation with the ureter. When you see the kidney आप पढ़ चुके हो ये kidney कैसे बनता है और इसकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे एक pyramid आपको दिखाया जा रहा है कि ये pyramid कैसे होता है। यहाँ पे ये मेजर और माइनर कैलेक्सिस बन के जो मेजर कैलेक्सिस होती है कन्वर्टेड इनटू दी pelvis and forming the pelvic ureter junction। ये दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं the level at the pelvic brim, और तीसरी जो जंक्शन है वो है एंट्रेंस एट द यूरिनरी ब्लैडर। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा इसके बाद जो है ये राइट्स के बाद लेफ्ट यूरेटर में हम आ जाएं तो लेफ्ट यूरेटर में क्या रिलेशन है, दोनों के रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि both have some part of the intestine anterior and posterior muscles or vessel structures are there। If you see from lateral side, sigmoid colon anterior होगा, sigmoid mesocolon, left colic vessel, the left testicular or ovarian vessel they lie on the left ureter anteriorly। Posteriorly, again psoas muscle and the bifurcation of the left common iliac vessels। Then blood supply। Now, if you see the ureter as compared to the structural arrangement, ureter has divided into three parts। It has upper 1/3, अगर हम कहें कि मिडिल पार्ट है तो उसको भी 1/3 कर लें, और लोअर है तो उसका भी लोअर पार्ट मिडिल थर्ड हम बना लेते हैं। ठीक है, हम देखेंगे उसका अपर पार्ट है उसकी वेसल और इंफीरियर पार्ट की जो वेसल है मिडिल पार्ट की डिफरेंट है। इसी तरह से वेन और नर्व्स और उसकी खास तौर पे इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक वेसल्स बहुत डिफरेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, व्हेन यू सी द यूरेटर इट हैज upper end, so that upper 1/3 is supplied arterial supplied by the renal artery या renal vein होगी जो इसकी ड्रेनेज होगी राइट और लेफ्ट में। अगर हम ये देखें कि अपर एंड पे राइट आर्टीरियल जो है अपर एंड की जो 1/3 के रीनल आर्टरी, मिडिल थर्ड जो है मिडिल पोर्शन ऑफ द यूरेटर that is supplied by the testicular or ovarian artery। Then the lower part that is a superior vesical artery veins venous drainage is corresponding to the arterial supply। Nerve supply, renal, testicular or ovarian or hypogastric plexus in the pelvis। अगर हम देखें कि मोस्टली जो नर्व सप्लाई अपर 1/3 की है वो है रीनल नर्व, और फिर अगर हम मिडिल पार्ट में देखेंगे टेस्टिकुलर और ओवरिन है, और इंफीरियर पार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। इसी तरह से ये एफरेंट फाइबर्स, अगर हम इसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये करें कि मोस्टली दैट हैज एफरेंट फाइबर्स ट्रेवल विद द सिंपैथेटिक नर्व एंड एंटर्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड इनटू द फर्स्ट सेकंड लंबर सेगमेंट्स। ये है इसका मेन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। Nerve supply that carried by the hypogastric plexus on that is about most important जो इसकी vasculature और nerve supply पे MCQ दे सकते हैं, वो इसमें इस तरह आपको पूछ सकते हैं।
एनी क्वेश्चन बेटा, कोई आपसे कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस जो है मोस्टली इसकी जो है पैरानोटिक और इलेक्ट नोट्स में इसकी लिमिटेड मैनेज होती है। आज की मोस्टली मेन इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो ग्रास व्यू में हमने देखे। हिस्टोलॉजी में आप इसकी मस्कुलर अरेंजमेंट, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो मोस्टली कोई एक ऐसा कोई सवाल आपके जहन में हो तो पूछ सकते हो। यस बेटा, इसके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि इसमें ज़्यादातर जो हम पूछते हैं इससे 3 कंस्ट्रक्शन लेवल पे क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पर आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो। सर माइक यस दूर रखा है आपने बेटा, थोड़ा। आवाज़ आ रही? जी जी बेटा, ऑलमोस्ट हमने आज बहुत सिंपल था और बहुत समान पार्ट था इसका, वो हमने कर लिया है। जो मैंने अभी 11 आप स्टार्ट किया था इसलिए जो शार्ट था कंटेंट आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। कोई भी सवाल जो है जो भी है फिर हम कल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आप अपने अटेंडेंस मेरे व्हाट्सएप पे या डॉक्टर आपको शेयर करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।